Okay, hello friends. Today we are discussing some numericals problems on electrostatics. जो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स है. देखेंगे क्या है. लेट्स सी हियर. Dipole is formed. What is there? Let's see. A dipole is formed by two charges plus and minus q. आप समझ लीजिए कहता है कि कोई डाइपोल है. This is the minus charge, this is the plus charge. Dipole is formed and placed at point A. Let's suppose let it be the point A and 1, 1, 2. And this is another point B. This is given here 2, 3 and 1. Okay. So find its dipole moment vector. What we have to find out here? Dipole moment vector. So dipole moment vector is represented by P. Okay, it is represented by P, and you know this is the product of charge and length of the dipole. So this is the formula. Okay, here charge is given plus minus q, so take q, and L is taken from. You have to find out from the. These are the points, coordinates of the points. So you can write like this: 2 minus 1 into I plus 3 minus 1 into J plus 1 minus 2 into K. Okay. So Q I plus twice J minus K. This would be the, you have to solve like this. Okay, are you getting? Yes, please. Yes, please write down. We will see the next problem. Okay. Yes, let's see the next problem. Here, what is the questions? A dipole of moment P is placed in electric field E at an angle 30 degree. If it is rotated by an angle 60 degree, then work done will be. What we have to find here? In this problem, work done we have to find. You know, work equal to P cos theta 1 minus cos theta 2. Okay, already in the problem moment is of moment P, dipole moment is already is P. Electric field, value of electric field is already E in the problems. What is the value of theta 1? Initially dipole is placed at an angle of 30 degree. So take theta 1 is the 30 degree. Okay, minus, and it is rotated by the angle of 60 degree. So what would be the theta 2? Cos. What would be the cos? What we have to take here? ओके, हमें क्या लेना चाहिए? थीटा. क्योंकि पहले वो इनिशियली 30 पर था, आपने पहले देखा था इस तरह से. एक बार देखिए, ये डाइपोल है, इनिशियली इट इज एट 30 डिग्री. इस 30 से रोटेट किया, रोटेटेड एंगल थ्रू 60 डिग्री. लाइक दिस इट इज रोटेटेड. Now this angle would be 90. Okay, so take the cos theta 90 degree. Yes, so it would be PE cos 30 degree. Value of cos 30 degree is root 3 upon 2 minus 0. Hence answer would be root 3 PE upon. This is the solutions.
Okay, getting exactly theta 1 you have to take 30 degree. It is rotated from 60 degree, means theta 2 would be 90 you have to take, and this is the solutions of these questions. Okay, right now we will see the next problem. Okay, yes. Okay, let's see here what is the questions. Due to any dipole, intensity of electric field at its axial position at a distance x is equal to electric field at equatorial line at a distance y, then value of x upon y will be. ओके, गेटिंग द क्वेश्चंस एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ क्या कहता है क्वेश्चंस. ये जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है प्लीज नोट डाउन, इसको हम सॉल्व करेंगे. क्या कहता है क्वेश्चंस में, लेट्स सी. ओके, कहता है कि कोई डायपोल है, कहता है एक्स डिस्टेंस पर जो उसका एक्सियल पोजीशन में क्या होता है, एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, एक्सिस पर फॉर्मूला क्या होता है डायपोल का, ट्वाइस kp अपॉन डिस्टेंस दिया है, ठीक है, y क्यूब इक्वल टू हो जाएगा kp अपॉन एक्सिस पर डिस्टेंस कितना दिया है x. ओके, एंड kp अपॉन y क्यूब. दिस इज द, ये क्या है मैंने, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट द डिस्टेंस y. This both are cancelled to each other. Okay, what we have to find out, x upon y, so you can write like this, x cube upon y cube equals to twice. Okay, so x upon y we have to find to the power 1 upon 3. This is the answers. Okay, clear hai? Thank you. We will see the next problem. Are you getting? Yes. Okay, this is another problems. First of all, see what is in problems. A dipole of moment p equal to I plus twice j plus thrice k, okay, and is placed in electric field, is placed in electric field E, okay, 3I plus twice j plus k, then find its potential energy and torque act on it. Okay, in these questions first we have to find what, potential energy, and then we have to find torque. Okay, let's see here what. Okay, you have note down, we need electric field and, okay, let's see, we have to find out the torque. You know torque equal to E cross E. Okay, this is the cross product of dipole moment and electric field. Okay, you know I, J and K. Okay, 1 2 3 3 2 1. Okay, you can calculate 2 into 1 minus 3 into 2 minus j 1 into 1 minus 3 into 3 plus k cap 1 into 2 1 into 2 minus 2 into 3. Okay, just calculate it. This would be I
2 minus 6. Okay, so it would be minus 4i. This is the minus 8 and minus plus 8j and minus 4. Okay, this is the torque will act on at here. Okay, now next we have to calculate potential energy. Okay, first write down this. Okay, now this is the torque, and the same question we have to calculate potential energy. You know, minus P dot E. What is the potential energy? The dot product with negative sign. So you can from there you can take the dot product. 1 into 3 plus 2 into 2 plus 3 into 1. Okay, 3 plus 4 plus 3. Okay, minus 10 joule would be answers. Okay, problem is solved. We will see the next. Please note down. Yes, see these problems. It is also on the dipole at any line which is at an angle 60 degree from the direction of dipole moment. Okay, find the angle between E and P. What is the angle between E and P? You have to find out. Okay, let's see how to solve it. First note down the question, then I solve it. Okay, इसको एक बार समझ के देखते हैं. ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? Let's see. Yesterday we have studied like this. We have to done. This is the minus q and this is the q, and here the dipole moment P and B OP. Okay, so take the component of P. So like this we have taken this is the E1 and this is this angle is theta. It is 60 degree given here, and like this, and this is the resultant E. So this angle theta and this is the alpha. Okay, so angle between E and P, this is the P. So here angle between E and P equal to theta plus alpha. Okay, and theta plus alpha can be, here you can calculate tan alpha. Tan alpha equal to, this is the, yesterday we have taken this is E1, this is E2. Okay, tan alpha you can take E2 upon E1. Yes, and it is the equator, so Kp upon RQ divided by this value is Kp upon twice Kp upon RQ. Okay, so alpha equal to tan inverse half. Okay, yes. Okay, are you getting? So this component we have taken yesterday, twice Kp upon RQ cos theta.
because P has component here cos theta, and this is Kp upon Kp sin theta upon Rq. Okay, so take here cos theta, this is here sin theta, okay, and here cos theta. It would be half tan theta. Okay, so you have to, here alpha would be tan inverse half tan theta. Okay, theta is given 60 degree, so 60 degree plus tan inverse half tan 60 degree pi upon 3 plus tan inverse tan 60 degree root 3. This would be the answers. You can solve like this. Okay, are you getting? Yes, write down. Okay, let's see here. This is one of important questions. A dipole moment is placed in electric field E in equilibrium position. Then how much work is done in rotating it to the position of maximum torque? What we have to do here, we have to find the work. Okay, yes, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है. We have to work, we have to find. Okay, so formula of work done is PE cos theta 1 minus cos theta 2. Okay, here P and E, what is electric field is given, dipole moment is P is given, and initially just let's see, dipole is put in the this position along the electric field. Okay, and it is displaced to the maximum torque. So you should know maximum torque at the angle of, when theta is 90 degree, then torque will maximum. Okay, so this would be the our theta 2 in the problems initially along the direction of electric field. So theta would be 0 degree and this would be cos 90 degree. Okay, so work would be PE cos 0 is 1, cos 90 is 0. So PE will be the answers. Okay, so almost all questions we have done on the previous lectures. Okay, thank you very much. In next class we will see something on the electrostatics. Okay, thank you very much. हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक की. कंसीडर करेंगे. इसमें पहला पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई. डी ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करेंगे. इसका पहले से रिलेशंस कैसा है एस ब्लॉक से. डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्मॉलर देन एस ब्लॉक. डिपेंड कैसे करती है सिचुएशन. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड इफेक्ट भी कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट. समझने के लिए देखिए, हमारा पॉजिटिव सेंट्रल है, न्यूक्लियस है, और इसके पास में जो होगा उसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा. जैसे जैसे दूर जाएंगे उससे अट्रैक्शन पावर कम होता जाएगा. प्लीज कंसीडर. नेक्स्ट हम आपको बताते हैं 3D सीरीज के कुछ पॉइंट्स और उसके आने की बात बताते हैं. 3D सीरीज में सबसे पहले स्कैंडियम तो शुरू होता है. स्कैंडियम टू क्रोमियम, जो जेड इफेक्ट रहता है वो अधिक रहता है अगर, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम रहता है, तो रेडियस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना चलेगा, मतलब डिक्रीज होने लगेगा. Mn से
Ni तक दोनों बराबर हो जाते हैं, Z इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट। कॉपर से लेकर Cu से Zn तक Z इफेक्ट कम हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4D एंड 5D ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि इसमें लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन जो होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक, क्योंकि उसमें लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है तो उसमें ज्यादा प्लस माइनस नहीं हो पाता ड्यू टू लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन। ऑलमोस्ट बराबर क्यों है? ड्यू टू लेंथनाइट कांस्टेंट्स, ठीक। नेक्स्ट, La से लेकर HF तक जो हमारा ये मिसिंग एटॉमिक नंबर होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं ड्यू टू लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन मिसिंग दैट, जो मिसिंग दैट होते हैं उसके हिसाब से ये इसी को लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक्टिनाइट्स में RF में जो मिसिंग होते हैं उसको एक्टिनाइट कंस्ट्रक्शन कहते हैं, मिसिंग दैट, ठीक। थर्ड में भी अगर हम देखें तो ग्रुप वाइज देखें तो Sc से बाद क्या आएगा? बैक्टीरियम आएगा और लेंथनियम। सबसे ज्यादा क्या होगा? लेंथनियम का साइज होगा, क्योंकि इसमें लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन नहीं होता, नॉट Lc। अब La लार्जेस्ट रेडियाई हो गया और स्मॉलेस्ट रेडियाई क्या हो गया? निकेल। प्लीज कंसीडर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 3D सीरीज में स्कैंडियम टू क्रोमियम Z इफेक्ट ज्यादा, रेडियस डिक्रीज, Mn टू निकेल बराबर है, रिमेंस कांस्टेंट, Cu से Zn तक स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, रेडियस इंक्रीज। 4D और 5D ऑलमोस्ट सेम क्यों रहते हैं? ड्यू टू Lc मतलब लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन। और La और HF में जो मिसिंग एटॉमिक नंबर होते हैं वो भी इसी के कारण होते हैं, और एक्टिनाइट्स में भी जो मिसिंग होते हैं वो भी एक्टिनाइट कंस्ट्रक्शन और लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन का नाम होता है। थर्ड बी में देखिए, ये जो Sc, Y और La है सबसे ज्यादा कौन होगा? La, क्योंकि इसमें Lc लेंथनाइट कंस्ट्रक्शन नहीं होता। La लार्जेस्ट रेडियाई और निकेल स्मॉलेस्ट रेडियाई। प्लीज कंसीडर। नेक्स्ट अपन डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी है क्या आखिर? डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, D इज इक्वल टू M बाई V। इसका मतलब अगर वॉल्यूम और लो तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, V फॉर वॉल्यूम। और थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। एक्सेप्ट Sc, Y और Ti, इनकी डेंसिटी क्या होती है? दैट देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है, ये खास बात है। OS और IR की डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। इसमें अगर हम देखें Ti की बढ़ेगी, Zr की बढ़ेगी, पर HF की डबल बढ़ जाएगी। क्यों? ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। 3D की में Cu की डेंसिटी हाई होती है, हाईएस्ट होती है, और Sc की डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी होती है। इधर हम 3D में और थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक डेंसिटी हाई होगी, इंक्रीज करेगी, मतलब Mn, Fe, Co और Ne की ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, बट Cu से लेकर Zn तक डेंसिटी डिक्रीज करेगी, D इंक्रीज, D डिक्रीज, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। स्पेशल केस में अगर हम जाते हैं तो देखिए Fe की बढ़ेगी, फिर उससे ज्यादा Ni आ जाएगा, फिर Cu आ जाएगा। नेक्स्ट केस Fe, Cu और Au, नेक्स्ट केस Fe, Hg और Au। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बनते जरूर है, प्लीज कंसीडर। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम से Sc से Zn तक इंक्रीज करेगी। कैसे करेगी? इस व्यू में इंक्रीज करेगी, ठीक। अब 5D मच हायर देन दोज 3D एंड 4D सीरीज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। प्लीज कंसीडर।
इसको सील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं मेटलिक करेक्टर। मेटल्स के मेटलिक करेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ऑफ कोर्स होती है, डक्टाइल होते हैं, ठीक, मैलिबिलिटी होती है। डक्टाइल का मतलब होता है जैसे तार बनते हैं, जैसे जितना भी लंबा घसीट सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। मैलिबिलिटी मतलब जैसे टीन की सेट बनती है, कितना भी पीटेंगे तो सीट का रूप ले लेते हैं, मैलिबिलिटी कहलाती है। गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Cu, Ag और Au मतलब कॉपर, सोना और चांदी, ये मोस्ट डक्टाइल एंड सॉफ्ट होते हैं। आप देखते नहीं, कहते नहीं सोने के गहनों में जब तक आप थोड़ी सी इम्प्योरिटीज मिलावट नहीं करेंगे तब तक सोने के गहने नहीं बन सकते, क्योंकि इतने मुलायम होते हैं, वो स्टेबल नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे। इसलिए थोड़ा कॉपर और सिल्वर सोने के गहनों में मिलाया जाता है, ठीक। ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी देखें अगर तो Ag सबसे ज्यादा होगा, फिर Cu होगा, फिर Au होगा और सबसे कम Al होगा, एल्युमिनियम होगा। अब इसको याद करने का तरीका हमने आपको बताया है। क्यूट, Ag क्यूट है, Ag क्यूट है, सोना अली, ऐसे याद कर सकते हैं। Ag क्यूट है, सोना, Ag क्यूट है, सोना अली, सेंटेंस से याद रख सकते हैं, बहुत दिन तक रिमाइंड रहेगा। और एल्युमिनियम से बात याद आई कि एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके जो कण पार्टिकल्स निकलते रहते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन को अवॉइड करना चाहिए। ओके गाइस, प्लीज कंसीडर। नेक्स्ट हम फॉलो करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डी का ब्लॉक का ज्यादा रहता है इन कंपेरिजन टू एस ब्लॉक। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटलिक जो करेक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं कोवैलेंट कार्बन के कारण और अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन के कारण। तो स्ट्रॉन्गर metallic behavior and presence of covalent bond formed by unpaired d electrons। अब इसमें देखिए Zn, Cd और Hg ये volatile metal क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते ही नहीं है, और एब्सेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हम 3D सीरीज को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या सिस्टम फॉलो होगा। Sc से लेकर Cr तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और Mn से लेकर Zn तक डिक्रीज करेगा। Mn और Tc का लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं, क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं। बहुत ध्यान रखना, हाफ फील्ड और फुल फील्ड को चेक करते हुए चलना। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? Hg का होता है, और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? W, टंगस्टन का होता है। वैल्यूज दी गई हैं। एक बहुत ही थियोरेटिकल बात है पर समझने की बात है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे कोवैलेंट बॉन्ड भी इंक्रीज करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा। प्लीज कंसीडर। देखिए, मैंने आज आपको डी ब्लॉक की सिचुएशंस में प्रॉपर्टीज वगैरह बताई हैं, आप उसको अच्छे से कंसीडर करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और इसका आप हमको फॉलो अप दीजिए, कैसा क्या लग रहा है आपको। प्लीज कंसीडर। और आज आपका दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, और आप
जीत की ओर, सक्सेस इज डिमांडिंग, आज जीत की ओर अग्रसर। नमस्कार, गुड डे।